Hello students and my dear friends, myself Asharfi Pal from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Bilaspur PGT Biology. Today we discussed about our 12th standard biology lesson molecular basis of inheritance. आज हम molecular basis of inheritance में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम DNA वर्ल्ड पर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, चैरगाफ रूल, ये सारी चीज़ें हम उस पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस इन चीज़ों पर करेंगे कि किस टाइप से RNA वर्ल्ड क्या है, सेंट्रल डोगमा, इसमें हम देखेंगे सेंट्रल डोगमा DNA का रेप्लिकेशन है, RNA वर्ल्ड, DNA पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो RNA वर्ल्ड। इससे पहले हम DNA पर डिस्कस कर चुके हैं। RNA वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय नोबेल laureate Walter Gilbert in 1986 based on observation of the catalytic properties of various forms of RNA। 1986 में वाल्टर गिलबर्ट ने जो अपना ऑब्जर्वेशन किया कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ RNA, उन्होंने RNA के वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स को बताया, जिसमें द RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस प्रपोज दैट अ वर्ल्ड फिल्ड विद लाइफ बेस्ड ऑन द राइबोन्यूक्लिक एसिड predates the current world of life based on deoxyribonucleic acid, DNA and protein। RNA which can both store formation, RNA के अंदर भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जैसे कि DNA में होता है, और ये एक एंजाइम की तरह प्रोटीन्स की तरह वर्क करता है। may have supported cellular or pre-cellular life। some hypothesis as to origin of life present RNA based catalysis and information storage as the first step in the evolution of cellular life। in the RNA world, RNA function as both of the carrier information। RNA वर्ल्ड में RNA जो है एक कैरियर इंफॉर्मेशन के रूप में वर्क करता है, एंड एन एंजाइम इट कैटलाइज्ड इट्स ओन रेप्लिकेशन and a synthesis of proteins during the transitional period। proteins previously synthesized with the help of RNA catalyze the transition from RNA to DNA। today proteins catalyze the replication of DNA, they also catalyze the transcription of DNA into RNA and the translation of the messenger RNA into proteins। RNA जो प्रपोज किया टू हैव evolved into the DNA and protein world of today, DNA through its greater chemical stability took over the role of data storage, while the protein, which is the more flexible in catalysis through the great variety of amino acids, become the specialized catalytic molecular, the RNA world hypothesis। पैकिंग DNA हेलिक्स, DNA हेलिक्स की पैकिंग taken the distance between two consecutive base pairs as 0.34 μmicron if the length of DNA double helix in the typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10 to the power 9 base pair and 0.34 into 10 power minus 9 base pair, it comes out to be approximately 2.2 meters। ये DNA हेलिक्स की लेंथ इसमें बताया गया है, और जो लेंथ दैट इज द फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ द टिपिकल न्यूक्लियस। DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में किस टाइप से होता है? इन प्रोकैरियोट्स सच एज एस्केरिशिया कोली, though they do not have a defined nucleus, the DNA is not scattered throughout the cell। DNA is held with some nucleoid associated proteins that have positive charge in the region termed as nucleoid। the DNA in nucleoid is organized in the large loop held by the proteins। DNA
पैकिंग जो प्रोकैरियोट्स में है, हिस्टोन इसका एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें प्रोटीन्स पाई जाती है. यूकैरियोट सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए पैकिंग लीडिंग टू क्रोमेटिन फॉर्मेशन. दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि विदाउट हिस्टोन डीएनए वुड बी एक्सट्रीमली लॉन्ग इन रिलेशन इन द सेल. यूकैरियोटिक क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर है कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज द न्यूक्लियोसोम, जिसको हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं, विच रिजेंबल लीड्स ऑन द स्ट्रिंग कनेक्टेड बाय सीक्वेंसेज ऑफ लिंकर डीएनए. आ न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म ऑफ डीएनए सेक्शन. जो न्यूक्लियोसोम है वो डीएनए सेक्शन का बना है जिसमें 220 पेयर होते हैं और रैप्ड अराउंड अ कोर ऑक्टामर ऑफ 8 हिस्टोन. Each octamer has 2 pairs of different histone proteins, जिसमें has 2 pairs, दो के पेयर्स में डिफरेंट हिस्टोन का प्रोटीन्स होता है, जिसमें हिस्टोन 2A, हिस्टोन V, 3 and 4. They are arranged as the pairs of histone A and B diameters and the tetramer. There is an additional type of histone, the linker histone, which is the present in condensed DNA histone. न्यूक्लियोसोम का जो डायग्राम होता है उसमें एक उसका हिस्टोन जिसमें ऑक्टेमर होता है, एक हिस्टोन, दूसरा डीएनए कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. लिंकर रीजन, उसका जो लिंकर रीजन है कनेक्टिंग कोर पार्टिकल्स एंड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन condense 30 new micron chromatin fibers from the smaller wells on the string fibers of approximately 10 to 11 new micron. Although histone is the most commonly studied linker, histone, there are others. For example, histone 5 is the substitute for histone 1 in nucleated erythrocytes. DNA replication models. In DNA replication models, the process of DNA replication was hiding many secrets. One of the most important was how the 2 daughter strands are created. किस टाइप से 2 daughter strands उसके create होते हैं. As we have noticed earlier, the DNA is a complex of 2 complementary anti-parallel chains. जो DNA का डबल हेलिक्स मॉडल्स हमने देखा है उसमें DNA is a complex of 2 complementary anti-parallel chains में है. In order the hereditary phenomena to be explained, these strands should be accurately copied and transmitted from the parental cell to the daughter cells. और किस टाइप से ये पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स में ट्रांसमिटेड होता है. देयर आर 3 पॉसिबल मॉडल्स. इसके 3 पॉसिबल मॉडल्स हैं दैट डिस्क्राइब द एक्यूरेट क्रिएशन ऑफ द डाटा चेन्स. पहला जो मॉडल्स है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए रेप्लिकेशन वुड क्रिएट 2 मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ देम वुड बी कॉम्प्लेक्स of an old parental and a new daughter strand, जिसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरा डॉटर स्ट्रैंड होता है. सेकंड, कंजर्वेटिव मॉडल. कंजर्वेटिव मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो मिड में देख रहे हैं ये कंजर्वेटिव मॉडल है. फर्स्ट सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, वी में मिड में कंजर्वेटिव मॉडल है और लास्ट में जो है डिस्पर्सिव मॉडल है. 3 मॉडल यहाँ पर शो हो रहे हैं. तो कंजर्वेटिव मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस वुड क्रिएट अ ब्रांड न्यू डीएनए डबल हेलिक्स मेड ऑफ 2 daughter strands while the parental chains would be conserved. And the third is dispersive model. According to this model, the replication process would create 2 DNA double chains, each of them
with parts of both old and new daughter molecules. किस टाइप से? जो पेरेंटल से नई डॉटर सेल्स फिर वो बन जाती हैं. As given ahead, the correct model is the semi conservative DNA. और इसमें जो इसका करेक्ट मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑफ मेसेल्सन स्टॉल, जिसको एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया वो मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टॉल ने उसको प्रूव किया. मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट्स, इसमें वेटसन एंड क्रिक 1953 सजेस्टेड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. वेटसन एंड क्रिक ने ये बताया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव है एंड ईच डॉटर मॉलिक्यूल कंटेन एन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड. और हर जो डॉटर मॉलिक्यूल्स है वो कंटेन्स एन ओल्ड एंड न्यू स्ट्रैंड, जिसमें एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड होता है. मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहॉल provided strong evidence for semi-conservative modes of DNA replication in Escherichia coli. Meselson and Stolz grew Escherichia coli in the medium containing the stable heavy isotopes. इन्होंने स्टेहल और मैथ्यू मेसेल्सन ने एस्केरिया कोली को एक हैवी आइसोटोप जो नाइट्रोजन का एक आइसोटोप था N15, so that the bacterial DNA become fully density leveled strands and then they transfer to the bacteria to a medium containing नाइट्रोजन 14, जो नाइट्रोजन का दूसरा आइसोटोप से 14 उसमें ट्रांसफर किया. आफ्टर ईच सेल डिवीजन डीएनए वाज प्रिपेयर फ्रॉम द सैंपल ऑफ द सेल्स एंड एनालाइज, और बाद में इसको एनालाइज किया. मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में क्या है? द टर्म मैसेंजर आरएनए हैज बीन प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनोड. मैसेंजर आरएनए को जो प्रपोज किया वो जैकब एंड मोनोड ने इन 1961 में. इट इज इंटरमीडियरी इन द प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग जीन इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशनल आरएनए. इसको हम इंफॉर्मेशनल आरएनए के नाम से भी जानते हैं, एज इट पासेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन. और इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो पास आउट होती है डीएनए से प्रोटीन में. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमेरेज सेकेंड. इन यूकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए इज इनिशियली ट्रांसक्राइब्ड एज प्रीकर्सर कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट विच यूजुअली अंडरगो 3 मेजर मॉडिफिकेशंस. उसके 3 मॉडिफिकेशंस क्या हैं? फर्स्ट है द एडिशन ऑफ 7 मिथाइल ग्यूनोसाइन कैप्स टू 5 टर्मिनल when the growing RNA chains are only about 30 nucleotides long. Second is the addition of poly tail stack to the adenosine monophosphate residue about 200 nucleotides long to the 3 ends and a process called polydenylation. And the third is excision of the intron. The intervening sequences, the sequences that remain present in the mature messenger RNA molecules are called exon. Next is functional RNA. In functional RNA fall into a variety of classes that play diverse role. Unlike messenger RNA, all functional RNA are active as RNA. They are never translated into proteins. वो कभी भी प्रोटीन्स में ट्रांसलेट नहीं होगा. Each classes of functional RNA is encoded by a small number of genes. They are both stable and transcribed in many copies. इसका जो मेन क्लास है फंक्शनल आरएनए का, वो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में, जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स होता है. और इसके जो 2 क्लासेज हैं फंक्शनल आरएनए के, वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए होते हैं. ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं, द टर्म ट्रांसफर यानी टीआरएनए हैज बीन प्रपोज्ड बाय द महलोन होगलैंड इन 1957 में इन्होंने इसको प्रपोज किया. टीआरएनए इज ऑल्सो नोन एज द सोल्यूबल आरएनए.
इसको हम soluble RNA के नाम से भी जानते हैं. It is soluble in 1 molar solution of sodium chloride tRNA, identifies amino acid in the cytoplasm and transports them to a ribosome. The molecules of tRNA are single-stranded, relatively small, and contain between 74 to 95 nucleotides, and eukaryote RNA polymerase third catalyzes the synthesis of tRNA. पहला, the first person of determine the base sequence of tRNA molecules was Robert Hawley, and the reported of base sequence of alanine tRNA from yeast of purpose to dimensional structure of tRNA. Next, ribosomal RNA. Ribosomal RNA, the term ribosomal RNA has been proposed by Kurland in 1960. इसको जो प्रपोज किया वो क्यूरलैंड 1960 में प्रपोज किया. इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट है और इसको इनसोल्यूबल आरएनए के नाम से भी जानते हैं. राइबोसोमल आरएनए जो सिंथेसाइज होता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन बोथ आरएनए पॉलीमरेज और मानव के अंदर सिंगल प्री आरएनए सिंथेसाइज होता है विच इज प्रोसेस टू अ गिव इंडिविजुअल 28S, 18S and 5.8S RNA. The main functions of RNA, RNA का जो मेन फंक्शंस है राइबोसोमल RNA का is to attract and provided large surface for spreading of messenger RNA over ribosomes during translocation process of protein synthesis. Another classes of functional RNA और RNA का जो दूसरा क्लासेस है जिसमें पार्टिसिपेट्स करता है इन द प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए के रूप में एंड इज स्पेसिफिक टू यूकैरियोट्स. स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए फाउंड ओनली द यूकैरियोट्स. सम RNAs guide to the modifications of rRNA. Others unit with several protein subunits to form ribonucleoproteins processing complex called the ciliascosome that removes introns from eukaryotic messenger RNA. Central dogma of molecular biology. सेंट्रल डोगमा इसमें क्या है? द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड इन 1958. सेंट्रल डोगमा 1958 में इसको प्रपोज किया गया जिसमें जो बायोलॉजिस्ट थे फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक stating that the biological information flows in the unidirectional pattern डीएनए से आरएनए में. किस टाइप से उसका ट्रांसमिशन होता है और फिर डीएनए से आरएनए और आफ्टर दैट प्रोटीन्स में. द एक्सेप्शन टू सेंट्रल डोगमा इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिपोर्टेड बाय द अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हार्वर्ड मार्टिन टेमिन and David Baltimore 1970 independently in the RNA containing RNA dependent DNA polymerase. Further, it has been reported that telomeric region of some chromosomes can be synthesized from an RNA template. Central dogma किस टाइप से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन प्रोटीन्स में होता है. ट्रांसक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमारे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर आती हैं उनको जो कॉपी करने का जो प्रोसेस है फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, डीएनए के एक स्टैंड से आरएनए में, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं. ये जो प्रोसेस है टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेटिक सेल्स. ट्रांसक्रिप्शन जनरेट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए identical in sequence with one of the strands of the duplex DNA. The standard of DNA with polarity 3-5- that direct synthesis of mRNA by a complementary base pairing
is called as the template strand of antisense strand. The other strands of DNA with polarity 5' to 3' bears of the some sequences as the messenger RNA. ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है, a transcription unit in DNA is defined primarily by the regions in the DNA. पहला उसका प्रोमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन और थर्ड इज टर्मिनेटर. The promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5' end of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. तो वीडियो आपने, हमें आशा है आपने शुरू से लास्ट तक देखा होगा. अपने व्यूज़, अपने फीडबैक, अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिए. थैंक यू वेरी मच.